नमस्ते। अब हम यूनिट 2 द सुनामी के स्पीकिंग एंड राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन सेट करेंगे। फर्स्ट, सपोज यू आर वन ऑफ द वॉलंटियर्स who went to the Andaman and Nicobar Island for relief work after the tsunami. You work in the relief camps distributing food, water and medicine among the victims. You listen to the various stories of bravery of ordinary people even as they fight against odds to bring about some semblance of normalcy in their lives. You admire their grit and determination. Write a diary entry. यानी मान लीजिए आप उन वॉलंटियर्स में से एक हैं जो सुनामी के बाद राहत काम के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गए थे। आप राहत कैंपों में काम करते हैं, पीड़ितों को खाना, पानी और दवाइयाँ बांटते हैं। आप आम लोगों की बहादुरी की अलग अलग कहानियाँ सुनते हैं जो मुश्किलों से लड़कर अपनी ज़िंदगी में थोड़ी नॉर्मल ज़िंदगी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनकी हिम्मत और पक्के इरादे की तारीफ करते हैं। एक डायरी एंट्री लिखिए। यू मे स्टार्ट इन दिस वे, यानी कि आप इस तरह शुरू कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2004, द किलर सुनामी struck this in island 5 days ago, but the victims are being brought in even now. Each one has a story to tell. यानी कि जानलेवा सुनामी इन द्वीपों पर 5 दिन पहले आई थी, लेकिन पीड़ितों को अभी भी लाया जा रहा है। हर किसी के पास बताने के लिए एक कहानी है। आंसर 31 December 2004. The killer tsunami struck this island 5 days ago, but the victims are being brought in even now. Each one has a story to tell. As a volunteer in the relief camp, I have been distributing food, water, and medicines to the survivors. Many people have lost their families, homes, and everything they own. Still, I am amazed by their courage and patience. Ordinary men, women, and even children are helping one another and trying to rebuild their lives. Their grit and determination inspire me deeply. Though the pain is everywhere, hope is slowly returning. I feel proud to serve humanity in this difficult time. 31 दिसंबर 2004, 5 दिन पहले इन द्वीपों पर जानलेवा सुनामी आई थी, लेकिन पीड़ितों को अभी भी लाया जा रहा है। हर किसी के पास बताने के लिए एक कहानी है। रिलीफ कैंप में एक वॉलंटियर के तौर पर मैं बचे हुए लोगों को खाना, पानी और दवाइयाँ बांट रही हूँ। बहुत से लोगों ने अपने परिवार, घर और अपना सब कुछ खो दिया है, फिर भी मैं उनके साहस और धैर्य से हैरान हूँ। आम आदमी, औरतें और यहाँ तक कि बच्चे भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका हौसला और पक्का इरादा मुझे बहुत प्रेरित करता है। हालांकि दर्द हर जगह है, लेकिन उम्मीद धीरे धीरे लौट रही है। इस मुश्किल समय में इंसानियत की सेवा करके मुझे गर्व महसूस हो रहा है। ओके। Second, the story shows how a little girl saved the lives of many tourists when a tsunami struck the beach. Thanks to the geography lesson that she had learned at school, she remembered the visuals of a tsunami and warned her parents. यानी कि यह कहानी दिखाती है कि कैसे एक छोटी लड़की ने कई टूरिस्टों की जान बचाई जब सुनामी बीच पर आई। यह सब स्कूल में पढ़े जियोग्राफी के सबक की वजह से हुआ। उसे सुनामी के विजुअल्स याद थे और उसने अपने माता पिता को चेतावनी दी। डू यू रिमेंबर एनी इंसिडेंट व्हेन समथिंग दैट यू लर्न इन द क्लासरूम हेल्प्ड यू इन सम वे आउटसाइड द क्लासरूम? क्या आपको कोई ऐसी घटना याद है जब क्लासरूम में सीखी हुई किसी चीज़ ने क्लासरूम के बाहर किसी तरह आपकी मदद की हो? Write your experiences in a paragraph of about 19 to 100 words or narrate it to the whole class like an anecdote. अपने अनुभव को लगभग 90 से 100 शब्दों के पैराग्राफ में लिखें या उसे पूरी क्लास को एक कहानी की तरह सुनाएं। आंसर
I remember an incident when my classroom learning helped me outside the classroom. Once during my geography class, I learned about earthquakes and tsunamis and the warning signs related to them. A few months later, while watching a documentary, I noticed the sea water suddenly moving back from the shore. I immediately remembered my lesson and understood that it could be dangerous. I warned my family members and asked them to stay alert. Though nothing serious happened, my teacher later praised me for applying my knowledge. This incident taught me that classroom learning is very useful in real life. यानी कि मुझे एक घटना याद है जब क्लासरूम में सीखी हुई बातों ने क्लास के बाहर मेरी मदद की। एक बार अपनी जियोग्राफी क्लास के दौरान मैंने भूकंप और सुनामी और उनसे जुड़े चेतावनी के संकेतों के बारे में सीखा। कुछ महीनों बाद एक डॉक्यूमेंट्री देखते समय मैंने देखा कि समुद्र का पानी अचानक किनारे से पीछे हट रहा है। मुझे तुरंत अपना सबक याद आया और मैं समझ गया कि यह खतरनाक हो सकता है। मैंने अपने परिवार वाले को चेतावनी दी और उन्हें सतर्क रहने को कहा। हालांकि कुछ भी गंभीर नहीं हुआ, लेकिन बाद में मेरे टीचर ने मेरे ज्ञान को इस्तेमाल करने के लिए मेरी तारीफ की। इस घटना ने मुझे सिखाया कि क्लासरूम में सीखना असल ज़िंदगी में बहुत उपयोगी होता है। ओके।